How would you define reduction? Gain of electrons. Reduction is gain of electron. Yeah, yeah, yeah. Decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number. ठीक है, this is reduction. And how would you define oxidation? What is oxidation, beta? Loss of electrons or increase in oxidation. Loss of electrons, yeah. Increase in oxidation number. Okay. और उसके बाद कुछ रूल्स हैं, आई थिंक ये रूल्स आपको पता होंगे. आई होप दैट यू नो दीज रूल्स कि इन एलिमेंटल स्टेट व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट. एलिमेंटल स्टेट में द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी या ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0. लाइक Cl2 is an element. ठीक है, Ba2 is an element, oxygen is an element, nitrogen is an element. तो ये elemental states हैं. Like iron is elemental state, sodium is elemental state, copper is elemental state. तो elemental state में oxidation number will be taken as 0. समझ आई? Or the other rule is for hydrogen. Hydrogen is +1 with non-metal. With non-metals, hydrogen will be taken as +1. Like in HCl, HCl is 1 minus, so hydrogen is 1 plus. Again, hydrogen will be 1 minus with metals. Metal के साथ hydrogen को 1 minus consider करोगे. For example, if I take NaH, so sodium is 1 plus, so H will be 1 minus. So with metals, hydrogen will be considered as -1, and with non-metals, hydrogen will be considered as +1. Any question here? The other thing is ICl. तो ICl में I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और Cl का क्या है? What is the oxidation number of I and what is the oxidation number of Cl? +1 -1. +1 किसका है और -1 किसका है? आयोडीन का +1 है और -1 क्लोरीन का. क्लोरीन का +1 हाँ, है. क्यों ऐसा है? अच्छा, आप क्योंकि वे में बता रहे. हाँ, रूल क्या है इसका? रूल ये है कि कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप नंबर से रिलेटेड हो. कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ग्रुप नंबर के हिसाब से जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो will be given to more electronegative atom. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. तो अगर डाउन द ग्रुप देखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, अब ऊपर और नीचे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे. तो यू हैव फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. और ये ग्रुप 17 है. तो ग्रुप 17 का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1. So -1 will be given to more electronegative. So more electronegative is chlorine here. तो I का फिर +1 consider होगा. On the other hand, across the period, electronegativity increases. Okay, less electronegativity on the left and more electronegativity is there on the right. So across the period, electronegativity increase करेगी.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह से हो OF2 हो तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर किसको मिलेगा? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Oxygen is here and then fluorine is here. Oxygen is more oh sorry, no, Which one fluorine is? is more. Fluorine is more electronegative. ठीक है, तो फ्लोरीन को कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा। फ्लोरीन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। -1 times 2 which makes it -2. So this very oxygen will be +2. ये समझ आई सबको? Yes, sir. अगर दो फ्लोरीन पे मिला के -2 है तो फिर ऑक्सीजन पे +2 होगा ना, तभी ओवरऑल चार्ज 0 आएगा। एनी कंफ्यूजन हियर बेटा? if I go like this SO2 तो इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर किसको मिलेगा? We have group 16, तो group 16 में you have oxygen and then sulfur and then selenium. तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर यस ऑक्सीजन को मिलेगा -2 times 2. So what will be the oxidation number of sulfur? +4. +4, क्योंकि दो ऑक्सीजन पे मिला के -4 होगा। समझ आ रही है? Yes, sir. यस, क्वेश्चन कोई पूछ रहा है? NF3, अब NF3 में कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर किसको मिलेगा? It is like this: carbon, then nitrogen, then oxygen, then fluorine, and then neon. Across the period, what happens to electronegativity? It increases. Increases. तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर पे फ्लोरीन को मिलना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो एक फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है टाइम्स 3, दैट इज -3 हो जाएगा। तो फिर नाइट्रोजन शुड बी +3, राइट? एनी कंफ्यूजन बेटा? No, sir. अच्छा, दूसरी एक अप्रोच आपको लेनी चाहिए बेटा। वो अप्रोच ये है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके सामने आए, इफ यू गेट सल्फ्यूरिक एसिड, so you should, you know, ionize it like this: 2 hydrogen ion and 1 sulfate ion. ठीक है? Now what is the oxidation number of this sulfur? Just go calculate this sulfur. So sulfur will be X at -2 for oxygen and 4 oxygens and overall -2. So this X is +6. समझ आई? The way I did it. ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ इट इज पोटेशियम फॉस्फेट, तो आप क्या अप्रोच लेनी चाहिए आपको? 3 पोटेशियम आयंस एंड 1 फॉस्फेट आयन, इसको स्प्लिट करना चाहिए लाइक दिस। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, क्योंकि आई होप आप ओ लेवल्स की आपकी चार्जेस वगैरह आपको पता है। फॉस्फेट इज 3-। एंड देन फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉस्फोरस इज X, 1 oxygen is 2- times 4 oxygens and overall charge is -3. So it's -3 plus 8, it will give +5. ठीक है? समझ आई? ये इसको आयोनाइज करके वाली अप्रोच जो है वो आपको लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह हो MgS2O7, तो अब बताओ S2O7 पे क्या चार्ज होगा? S2O7 पे क्या चार्ज होगा बेटा? -2। हाँ, आपको कैसे पता चला -2? सर Mg क्योंकि ग्रुप 2 का है इसलिए।
हाँ, Mg ग्रुप 2 का तो Mg पे +2 होगा। और देखो ओवरऑल चार्ज ऊपर मॉलिक्यूल में 0 है, ऊपर मॉलिक्यूल में ओवरऑल चार्ज 0 है, Mg +2 है, तो फिर H2O7 शुड बी -2। ये समझ आई? Yes, अब sir. ये इसमें सल्फर का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस 2x -2 टाइम्स 7 इक्वल्स -2, तो ये 2x -14 इक्वल्स -2, तो 2x इक्वल्स +12, तो x इक्वल्स +6। समझ आई? तो जो मॉलिक्यूल आपको गिवन हो तो आप जस्ट बेटर गो टू स्प्लिट इट। स्प्लिट करें तो तब आपको क्लियर आइडिया होगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है? एनी क्वेश्चन? यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। इसका क्या करना है? अमोनियम नाइट्रेट, हाउ वुड यू स्प्लिट दिस? अमोनियम would you आयन and NO3 are अलग। Ammonium ion is +1, okay? So it means कि ये nitrate ion is -1। ठीक है? अब this वाले नाइट्रोजन क्या होगा? ये X है। ये आई थिंक ये बेटा चैट में क्वेश्चन इमाम आप आंसर करें। अच्छा, X नाइट्रोजन इज X and hydrogen is +1 times 4 equals +1, so X will be -3। ठीक है? लेकिन जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का जो नाइट्रोजन उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? X -2 times 3 equals -1, so this is +5। समझ आ रही है बेटा? अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे लिखूं VO2Br, इसे कैसे मैं स्प्लिट करूं बेटा? जी बेटा, हाउ शुड आई स्प्लिट दिस वन? How to split this one? सर ब्रोमीन और BO2 पे। हाँ, ब्रोमीन आपको पता है ना, ब्रोमीन पे क्या चार्ज है? 1-, तो इसका मतलब है कि VO2 पे +1 चार्ज है। क्या इसमें रॉकेट साइंस थी? अब थ्रू ब्रोमीन यू कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट इज VO2। समझ आई? You know that bromine is 1-, so this VO2 will be 1+। अच्छा, now how to calculate oxidation number of this V? इस V को आप X लो, ऑक्सीजन इज -2 times 2 ओवरऑल +1, so V पे क्या चार्ज होगा? +3। समझ आ रही है? अब नेक्स्ट जिससे मैं पूछूं बेटा वो बताएं मुझे। if I write like this, so how to split this one? किससे पूछूं? हाँ हाशिम बेटा, how would you split this one? Sir, KCl-NO3. K? Sir, KCl or O3? No। Sir, K and ClO3. हाँ, K का आपको पता है कि K is 1+, तो फिर दूसरा क्या होगा? ClO3, तो ClO3 पे क्या होगा? 1- होगा, क्योंकि नेट चार्ज इज 0 ना। तो अब इस Cl का कैसे आप निकालो? Cl is X -2 times 3 equals -1, so X will be
+5। समझ आ रही है? अभी भी आप फंबल हो रहे हैं, चलो मैं करवाता रहता हूँ। जब आप फील करो ना कि कंफर्ट फील करो, तो तब देन वी कैन गो अहेड। अच्छा, अब इफ आई गो लाइक दिस, यस, इसको कैसे करेंगे स्प्लिट? Mg and CrO4. mg पे क्या चार्ज है? +2। +2। तो इसका क्या मतलब है कि CrO4 पे क्या चार्ज होगा? -2, क्योंकि ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 है। तो अब इस क्रोमियम का चार्ज क्या होगा? x, ऑक्सीजन का -2 × 4 = -2, so x will be +6। समझ आ रही बेटा? ये लास्ट ले लें, NH4 IO4, ये कैसे करेंगे? How would you split this? NH4 and IO4. NH4 पे क्या चार्ज है? +1. +1। अमोनियम पे 1+ होगा, तो फिर IO4 पे क्या चार्ज होगा? -1. -1। ठीक है, तो फिर इस नाइट्रोजन का आप अलग से और इस हाइड्रोजन का आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अच्छा, दूसरा आपको ये बेटा पता होना चाहिए, ClO1-, ClO2 1-, ClO3 1-, एंड ClO, ये आपको याद होने चाहिए। ये 4 आयंस हैं, ये क्लोरेट आयंस इन्हें बोलते हैं। कौन सा आयन है ये? क्लोरेट। ये भी क्लोरेट है, ये भी क्लोरेट है, ये भी क्लोरेट है। अब ये जो Cl है, इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? +1। इस Cl को X रखो और ऑक्सीजन -2 है, ओवरऑल -1 है, तो दिस Cl इज +1, तो हम बोलेंगे दिस इज क्लोरेट 1। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो Cl है उसका क्या है? दूसरे वाले Cl का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? इस तरह से करेंगे, दैट इज +3। अगला है क्लोरेट 3। अगला जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, तो वी विल से इट इज क्लोरेट 5। लास्ट वन इज क्लोरेट 7। तो ये क्लोरेट आयंस भी आपको याद होने चाहिए। क्लोरेट 1, क्लोरेट 3, क्लोरेट 5 एंड क्लोरेट 7, दे आर पॉसिबल। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? अच्छा, ये सारा बेटा बैकग्राउंड था। अब इस बैकग्राउंड के साथ वी नीड टू अटेम्प्ट वर्कशीट। वर्कशीट जब तक अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना, तो आपकी ग्रिप नहीं बनेगी रेडॉक्स पे। लेट मी टेक आउट वर्कशीट, रेडॉक्स की वर्कशीट। आज आप लोगों का होमवर्क होगा फिर, ठीक है? रेडॉक्स की वर्कशीट आप लोगों ने करना है एज अ होमवर्क। Okay, sir. मैं वर्कशीट निकाल रहा हूं। नजर आ रही है बेटा वर्कशीट? Nice, sir. नाउ Sorry. अब आई डोंट नो मैं कहाँ से स्टार्ट से क्वेश्चंस करूं या एंड से करूं। एंड से करता हूं, ठीक है? यहां से करते हैं। यहां से करते हैं क्वेश्चन 34 से करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन 34 का क्या आंसर होगा?
In the redox reaction, ये redox reaction है. How do the oxidation state? अच्छा बेटा एक और कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा ना, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. जिसकी ऑक्सीडेशन हो दैट पार्टिकल इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो दैट पार्टिकल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अभी क्या कह रहे हैं? हाउ डज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मीडियम एंड सल्फर चेंजेस. V की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? VO2 प्लस है ना, तो VX लें. ये अब आपको अपने जहन में करना चाहिए. +1 तो क्या हो जाएगा? +3 होगा. +3 हो गया, +5 होगा. +5 होगा. +5 होगा. यस, ये V+5 है और दूसरा V+3 है. तो ऑप्शन सी या डी होनी चाहिए ना. वेनेडियम इज गोइंग फ्रॉम +5 to +3. और ये सल्फर का क्या है? 4 positive. 4 पॉजिटिव. समझ आई? आई होप बच्चे कैलकुलेट कर सक रहे होंगे. सल्फर को लें x -2 × 2. बस अपने जहन में ये कैलकुलेशन करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा आपके पास. ये सल्फर +4 है. दूसरा सल्फर क्या है? SO4 2-. दूसरा सल्फर, ये जो सल्फर है ये +6 आएगा. इसको आप कर लें तो +4 से +6 ये है. विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी. जी बेटा, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? No, sir. No, sir. ओके जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, now what about 35? In which reaction does an element undergo the largest change in oxidation number? अब largest के लिए बेटा this chlorine is 0 because ये elemental है. What about this chlorine? What about OCl -1? How to proceed? ये OCl ये वही है जो मैंने अभी आपको करवाया है. देखो मैंने इधर ClO लिखा हुआ है ना बेटा, मैंने ClO लिखा है ना, उन्होंने OCl लिख दिया, इसी को OCl -1 लिख दिया. तो ये क्लोरेट 1 है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा. Sir, जी 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 बेटा. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं है? नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से. दो के डायगोनल पे है, लेकिन हम ऑक्सीजन को फिर प्रेफर करते हैं टॉप द ग्रुप. ऑक्सीजन और Cl में फिर ऑक्सीजन प्रेफर होता है. ओके सर. तो ये Cl+1 है, ये दूसरा वाला Cl -1 है. तो अब 0 2 +1 कितना चेंज है बेटा? 2 यूनिट का चेंज है ना, या 1 यूनिट का चेंज. 0 to +1 या 0 to -1, ये तो इतना ज्यादा चेंज नहीं है. अगला देखें, ये Cl 0 है. अभी मैंने आपको करवाया क्लोरेट ClO3 का, क्या मैंने करवाया था बेटा अभी? 5. हाँ, ये +5 है. तो कितना चेंज है इसमें? 5 यूनिट्स का. ठीक है, ऊपर 1 यूनिट का चेंज है. अच्छा, अब नीचे देखें इस क्रोमियम को. इस क्रोमियम का आप करें तो +6 बनेगा, और क्रोमियम ऑन द राइट देखें तो +3. तो कितना चेंज है ये? 3 यूनिट का. आयरन को मैं नहीं कर रहा कंपेयर, क्योंकि आयरन का चेंज 1 यूनिट का है, वो कम है. क्रोमियम का चेंज 3 यूनिट्स का है. ये जो मैंगनीज है इसका +7 है, और ये वाला जो मैंगनीज है इसका कितना होगा?
+4. ये +4 है, और ये वाला जो मैंगनीज है इसका कितना है? MnO4 1 माइनस का कितना है? तो MnX कर लें, -8 = -1, सो दैट इज +7, सॉरी, और ये +7 है, सॉरी बेटा, और ये ऊपर -2 था, लेफ्ट वाले को कर लेते हैं MnO4 2 माइनस, MnX ले लें, -8 = -2, so X is +6, सॉरी बेटा, ये +6 है ऑन द लेफ्ट। तो सबसे ज्यादा चेंज तो बी में ही नजर आ रहा है, 5 यूनिट का। बी में लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट बेटा? क्या मुश्किल थी एमसीक्यू में? किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं बेटा, अब मुझे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि आप में से किसको प्रॉब्लम फील हो रहा है। फेस टू फेस में तो फेस रीडिंग से मुझे पता चल जाता था, लेकिन आई हैव नो फेस रीडिंग राइट नाउ। सबको क्लियर है? Yes, sir. व्हाट अबाउट 36? What is the change in oxidation state of the element that is reduced? तो चेक करो कौन सा रिड्यूस हुआ। ये जो आयोडीन है इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर? लेफ्ट पे जो आयोडीन है -1। -1, क्योंकि पोटेशियम का +1 है तो आयोडीन का -1 है। और दी आयोडीन ऑन द राइट इसका क्या है? 0। 0। तो ये -1 to 0 इज ऑक्सीडेशन ना। और वो पूछ रहे हैं कि जो रिडक्शन जिसकी हुई है, जो रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस वाला चेक करो। ये जो सल्फर है इसको कैसे देखोगे बेटा? अभी मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड को आपने कैसे करना है, जस्ट स्प्लिट इट इनटू 2 हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फेट आयन। अब सल्फेट आयन में सल्फर को चेक करो, सल्फर इज X, -8 = -2, X is +6, ये सल्फर इज +6, सल्फर ऑन द लेफ्ट इज +6, लेकिन सल्फर ऑन द राइट इज -2। हाँ, कि कैसे बता पाओ कि -2 है? वो H2 है। हाँ, हाइड्रोजन का +1 है, तो 2 हाइड्रोजन का +2, तो सल्फर का -2 होगा। तो अब ये सल्फर रिड्यूस हुआ है +6 से -2 में, तो +6 से -2 कितना चेंज है? 8. 8। तो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। जो रिडक्शन हुई है जिसकी, उसका जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो 8 यूनिट्स का है। क्लियर? राइट। नाउ 37 सर जी। सर वो जो K2SO4 है उसका कुछ नहीं करना? हाँ, K2SO4 की तसल्ली कर लें, ठीक है, तसल्ली कर लें अपनी। देखो ये K+1 है, अगला जो K2SO4 है उसको ओपन करो तो वो उसमें पोटेशियम +1 और सल्फेट -2। तो देखो क्या चेंज आ रहा है पोटेशियम में? नो सर। कोई चेंज नहीं आ रहा। जब सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे करोगे स्प्लिट? सल्फ्यूरिक एसिड विल स्प्लिट लाइक दिस, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। तो देखो ये सल्फेट और दूसरा सल्फेट, कोई चेंज है? नो सर। तो इसलिए K2SO4 को कुछ नहीं करना। ये वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, yes, now what about 37? 37 is mole and redox together. The oxide of titanium, yani TiO2, is used as whitener in toothpaste, ठीक है। यानी जब आप टूथपेस्ट करते हो तो टाइटेनियम ऑक्साइड आपके दांतों से इंटरैक्ट करता है। It is obtained from the ore iron to titanate.
अब देखो ये इंटरेस्टिंग है ना, ये नाम जरा देखो, आयरन टू टाइटेनेट, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है. So what is the change, if any, in the oxidation number if the titanium in this reaction? तो ये देखो ये FeTiO3 goes to TiO2. इधर इन्होंने कहा है आयरन 2, ये क्या बोला हुआ है? आयरन 2 बोला. अब आयरन 2 जब बोला तो अभी जो मैं आपको सिखा रहा था, कैसे स्प्लिट करें? आयरन का चार्ज क्या है? 2+. H2. कैसे पता चला कि आयरन का चार्ज 2+ है? इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने कहा कि आयरन 2 है, तो फिर टाइटेनेट का क्या चार्ज होगा? जब आयरन का चार्ज 2+ है तो टाइटेनेट का क्या होगा बेटा? -2. -2. तभी तो ये न्यूट्रल आएगा. जब आयरन 2 है तो टाइटेनेट -2 होगा. अब जब टाइटेनेट -2 है तो इस टाइटेनियम का निकालो. टाइटेनियम इज X -2 × 3 = -2. So X +4. is +4. तो ये टाइटेनियम +4 है. अब टाइटेनियम ऑन द राइट साइड पे क्या है? टाइटेनियम ऑन द राइट साइड पे X -4 = 0. So X is +4. ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? D. D. डी ऑप्शन. देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर. बेटे बच्चे लीव क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलें, ये रेडॉक्स से अब यानी भाग तो सकते नहीं. रेडॉक्स से अब क्यों भाग नहीं सकते बेटा? सॉरी, ये आप स्केप नहीं कर सकते रेडॉक्स से, क्योंकि आपका A2 में रेडॉक्स होगा. A2 में पेपर 5 में भी रेडॉक्स इन्वॉल्व है, पेपर 4 में भी इन्वॉल्व है. तो मोल्स एंड रेडॉक्स तो आपके A2 में जरूर मोल का क्वेश्चन होगा, रेडॉक्स का भी होगा. तो यू हैव टू फेस इट. इसकी एक्सपर्टीज को अचीव करना. यस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे रेडॉक्स आ जाएगा, लेकिन रेडॉक्स छोड़ना नहीं चाहिए, मोल को भी नहीं, क्योंकि A2 में फिर बच्चा सफर करेगा जो मोल्स और रेडॉक्स को ग्रिप नहीं करेंगे. अच्छा, ये अब पूरी स्टोरी इन्होंने बता दी. तो व्हाट इज द ओवरऑल change in oxidation number of the chlorine when forming ClO negative ion from aqueous chlorine. देखो aqueous chlorine ये है, ये aqueous chlorine है. फर्स्ट रिएक्शन aqueous chlorine में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का 0 है ना. और the last thing which is formed is ClO negative. इस ClO negative में Cl का क्या ऑक्सीडेशन नंबर? +1. +1. So what is the overall change? ओवरऑल चेंज कितनी होगी 0 से +1? +1. हाँ, इट इज सी. ऑप्शन इज सी. ठीक है. अच्छा जी, 39 देखें कि इन विच सब्सटेंस डज नाइट्रोजन शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. चलें, ये तो खुद करें आप, मुझे बताएं क्या आंसर है. किस में नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है? जी, हाशिम से सी. बाकी बच्चे क्या कहते हैं? ये Yes, sir, पहले C. वाले में ऑक्सीजन -2 है तो नाइट्रोजन +2 है. दूसरे वाले में इसको ले लें 2x -2 = 0, तो x इज +1. ये नाइट्रोजन +1 आएगा. अगले वाले में 2x -8 = 0, so 2x = +8, तो x = +4, तो ये +4 आएगा. बेटा डी में क्या अप्रोच लेंगे आप? NaN2 है, आप इसे स्प्लिट करेंगे तो सोडियम पे क्या चार्ज है? 1+.
तो जब सोडियम पे 1 प्लस है तो NO2 पे क्या होगा? -1 -1। तो अब इस नाइट्रोजन को आप कैसे करोगे? नाइट्रोजन इज X और -4 इक्वल -1, सो इट्स +3। ये नाइट्रोजन +3, ठीक है। तो ये C इज द ऑप्शन, C इज द ऑप्शन। अच्छा, what is the oxidation number of the chlorine in each of the following? Cl2 में तो 0 है, NaCl में -1 है और इसमें +5 है। ये तो आसान था। देखो इसमें क्या अप्रोच आप लोगे, इसमें वही अप्रोच लो, Na को 1 प्लस कर दो तो CnClO3 1 माइनस, तो फिर Cl का निकालो तो यू विल गेट +5, ठीक है। तो एक C, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? अभी तो रेडॉक्स बैलेंसिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आया। चलो ये 41 का आप खुद करो बेटा। क्वेश्चन 26, क्वेश्चन 26 का कहा जा रहा है बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन तो पहले निपटाए ना, फिर 26 पे जाते हैं, ठीक है। ये 41 करें बेटा। Which pollutant present in the exhaust fumes that has, how do you say C? Oxidation number जो है ना, that has an element in +2 oxidation state and an odd number of electrons in one molecule of the pollutant. देखो +2 में तो ये है कार्बन, बाकी ये सल्फर -2 है, ये नाइट्रोजन +2 है और ये वाला नाइट्रोजन +4 है। तो +2 वाले या C है या A है। कार्बन मोनोऑक्साइड का डॉट एंड क्रॉस कैसे होगा? You know dot and cross for carbon monoxide? Is it the dot and cross diagram for carbon monoxide? Is it correct? Yes, sir. डेटिव बॉन्ड भी होगा। वो डेटिव बॉन्ड के साथ। हाँ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन विल कीप हियर फॉर द डेटिव बॉन्ड। तो नाउ 8 इलेक्ट्रॉन सबके पूरे हो गए। तो अब इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑड नहीं है, ठीक है। जबकि ऑन द अदर साइड NO को देखो, NO का डॉट एंड क्रॉस कैसे होगा? नाइट्रोजन के 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें नाइट्रोजन का आउटर शेल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। बताओ इसमें ये फ्री रेडिकल है या नहीं? ये C इज अ फ्री रेडिकल एज वेल। क्यों बेटा? Why C is free radical? It has an unpaired electron. हाँ, शाबाश। पार्टिकल विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फ्री रेडिकल। अब हाशिम कह रहे हैं क्वेश्चन 26 करें। Let us go to question 26. अच्छा जी, क्वेश्चन 26 क्या है कि in which reaction does hydrogen behaves as an oxidizing agent? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस होगा, which is reduced। जो खुद रिड्यूस हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन को चेक करना है सिर्फ आपने। ये हाइड्रोजन 0 है, ये हाइड्रोजन +1 है, ये तो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। 0 से +1 इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब सेकंड में देखो, ये हाइड्रोजन 0 है और दूसरा हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच है, तो ये +1 होगा और ये वाला हाइड्रोजन भी +1 है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल से हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो हाइड्रोजन विल बी +1। तो ये एक ही चेंज हो रहा है 0 से +1।
इट मींस कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड में देखें, ये हाइड्रोजन 0 है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन +1 है, क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1 होगा, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हुआ। अब अगला हाइड्रोजन 0 है और ये हाइड्रोजन -1 है, क्योंकि अब मेटल के साथ हाइड्रोजन विल बी -1, हाइड्रोजन विल बी -1 विद द मेटल, तो ये हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ। अच्छा, रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो डी इज द ऑप्शन। और आप में से कोई चाह रहा है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं करूं? एनीवन जो चाहे कि मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करूं? सर रिडॉक्स से नहीं है, वो मैंने एक ग्रुप पे डाला था, वो वाला आपने कहा था मुझे क्लास में याद कराना, तो कौन सा वाला? एक मैंने ग्रुप पे पूछा, मैं आपको बताती हूँ, देखिए। अच्छा, ओके ओके, चलें। इस वक्त रिडॉक्स, हाँ वो मेरा पॉलीमर का क्वेश्चन था, वो हम आएंगे। ऑर्गेनिक का मैंने टेस्ट लेना है, तो उसकी रिवीजन मैं करवाऊंगा। तो वैसे भी 27 खुला हो, ये भी करा। हाँ 27 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखें क्वेश्चन 27 इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, क्या कि क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन आल्सो रिएक्ट विद हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द क्लोरीन इन द प्रोडक्ट। तो ये तो आपको रिएक्शन याद होने चाहिए बेटा। क्या बताया था कि जब क्लोरीन कोल्ड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक याद है? और जब क्लोरीन हॉट NaOH से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? NaClO कोल्ड से और कोल्ड से NaCl3 बनेगा NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर, तो बैलेंस करना है इसे, ठीक है। और सर। हॉट से बनेगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस वाटर। ये रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, ये हैलोजेंस में पढ़े थे हमने, क्लोरीन का कोल्ड और हॉट से। अब आप देख लो ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कोल्ड प्रोडक्ट में देखना है, प्रोडक्ट में देखो, ये -1 है और ये +1 है, ये -1 है और ये वाला जो Cl ये +5 है, ये ऑप्शन होगा, ए विल बी दी ऑप्शन। इसमें मैं कोई क्वेश्चन देखूं बेटा, ये तो आसान है, ये भी आसान है। हाँ, ये कैसे करेंगे 30, MCQ 30 कैसे करना है? MCQ 30 कोई बताएगा, बताना चाहेगा MCQ 30 कैसे होगा? सर जो इक्वेशन है नीचे वाली, उसको 1/4 कर देंगे। नीचे वाली यानी आप क्या चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करेंगे यस सर। और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स तब भी इक्वलाइज होंगे जब नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इलेक्ट्रॉन्स को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड पे जो चीजें ना वो कैंसिल हो जाएंगी, तो यू विल बी लेफ्ट विद IO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 6 प्रोटॉन्स प्लस 2I2 प्लस 4 क्लोराइड्स। क्लोराइड्स बेटा 8 और 2 10 हो जाएंगे, कैन आई राइट 10 क्लोराइड्स हियर? समझ आई 10 क्लोराइड्स की? 2 क्लोराइड ये हैं और 8 क्लोराइड ये हैं, तो जो सेम साइड पे पार्टिकल्स होंगे ना एक जैसे, उनको ऐड कर दें और अपोजिट साइड वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिट साइड वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल हैव 4 ICl2 नेगेटिव
प्लस ICl2 नेगेटिव, ये ऐड हो जाएंगे ना दोनों, राइट? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये ICl2 है और ये भी ICl2 है, तो 5 ICl2 हो जाएगी प्लस 3 वाटर। अब बताओ ओवरऑल रिएक्शन, ये नीचे जो मैंने लिखा ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें IO3 और आयोडीन की रेशो क्या है? तो 1:2 बेसिकली 1:2 है, 1:2। समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें बेटा, कैसे होगा? नेक्स्ट आप खुद करें और उससे नेक्स्ट मैं कर देता हूँ। सर जी, फिर क्वेश्चन 56 भी करा दें इसके बाद। क्वेश्चन 56। जी सर। अच्छा एक मिनट, पहले ये क्वेश्चन 23 ना 32 ना करें, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। सर 31 पहले करवा देंगे। 31 यस सर। 31 में बेटा आपको ये अप्रोच लेनी चाहिए, अमोनियम नाइट्रेट है ना, अमोनियम नाइट्रेट को आप कैसे स्प्लिट करोगे? NH4 पे क्या चार्ज होता है? NH4 पे +1 होता है और NO3 पे फिर क्या होगा? -1 होगा। तो ये वाला नाइट्रोजन का क्या चार्ज है? यस मैं करूं, x + 4 = +1, x इज -3। और ये दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है इसका क्या चार्ज है? दूसरा नाइट्रोजन x है, -6 = -1, दूसरा नाइट्रोजन +5 है, तो ये +5 है और ये +3 है। अब N2O को देखो, ये कैसे होगा? तो इट्स 2x - 2 = 0, 2x = +2, x = +1, ये +1 है। अब बताओ प्लस, am I right बेटा? अच्छा ये -3 है बेटा, ये -3, ये जो अमोनियम वाला नाइट्रोजन है ये -3 था, ये -3। अब -3 से +1 कितना चेंज है? +4। +4, यानी इंक्रीज हुआ 4 यूनिट। और +5 से +1 -4। -4, क्योंकि 4 यूनिट डिक्रीज हुआ, तो डी इज द ऑप्शन। ओके सर, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, कौन सा बेटा मोइस क्या कह रहे थे? 56। जी सर। वैसे ये 32 क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 56 पे आते हैं। ये वाला, जी सर। अच्छा, the salt NaClO3 is used as non-selective weed killer है। अच्छा, on careful heating this reaction occurs, ये reaction एक दिया इन्होंने। On strong heating this very reaction occurs, the overall reaction is this one। अच्छा, तो what do these equation shows? तो पहली ऑप्शन है कि NaClO3 can behave as an oxidizing agent। चेक करो बेटा, ये Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ पे Cl क्या है? -1 है, और अगले केस में Cl is -8, ये +7 है। तो यस बेटा, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही रिड्यूस भी हो रहा है। तो यस, हम कह सकते हैं कि ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हम कह सकते हैं कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी है। यस, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन है, एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है।
or the oxidation number of the chlorine in the three compounds shown are +6, +8 and -1. Oxidation number of chlorine, बेटा +6 तो अभी तक नजर नहीं आया, +8 भी चेक कर लेते हैं बाकियों में। इसमें +7 है, इसमें -1 है। नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, -1 तो नजर आ रहा है, +6 और +8 नहीं नजर आ रहा। 3 गलत है, 1 और 2 ठीक है, तो बी होगी ऑप्शन। समझ आई बेटा? जी सर। देखो मेरी बात सुनो, आज आपका होमवर्क है रेडॉक्स। अच्छी तरह रेडॉक्स की वर्कशीट करें। कल हम रेडॉक्स यानी इस तरह वर्कशीट करेंगे, बस क्या कहते हैं, डन एंड डस्टेड। बस एग्जाम के लिए आपके रेडॉक्स प्रिपेयर्ड हो। कल मैं आपके प्रॉब्लम्स ले लूंगा रेडॉक्स की, और फिर हम मोल्स को भी यही अप्रोच लेंगे। मोल्स मैं इधर डिस्कस करूंगा, फिर आपने वर्कशीट करनी है थॉरोली, और फिर क्वेश्चंस हम करेंगे तो मोल आपका ग्रिप में आ जाएगा। राइट, तो फिर देखते हैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के एरियाज की तरफ जाएंगे। ठीक है सर जी जी हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं? जी, हम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये रेडॉक्स ओपन किया है ना हमने। उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। हाँ ठीक है, कल रेडॉक्स से क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, उसके बाद जो टाइम होगा उसमें आयोडोफॉर्म कर लें, और परसों फिर मोल्स कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, सो दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट लक। योर होमवर्क इज रेडॉक्स वर्कशीट।